Hello friends, my name is Divyesh Patel. I am from Navsari. I will teach you subject physics. Okay, in for NCRT. Okay, we teach all the theories. We learn all the theories, examples, and exercise also. Okay, let's start with our chapter number 6. Okay, electromagnetic induction. Okay, in electromagnetic induction, let's start with first point, introduction. Okay, generally in introduction we are discussing about history. Then what is the history of this? Before 19th century, there are electricity and magnetism. Both are separate phenomena. Then number of experiments occur on electric current by so many scientists, name Oersted, Ampere, and so many others. And they conclude that there is something interconnection between electricity and magnetism. And you all know this Oersted statement that if current flows in this direction of this wire, then magnetic field can generate in circular motion perpendicularly to this wire. Okay, this is magnetic field. We all know this this statement, Oersted statement, fourth chapter. Okay, what we can return from this moving current produce magnetic field. Okay, moving current can produce magnetic field. Then my question is whether moving magnet can produce a current. Okay, my question is whether moving magnet can produce a current. Okay, and the answer is yes. In 1830, two scientists named Michael Faraday and Joseph Henry doing number of experiments to achieve this statement or to achieve this. By moving magnet, they trying to achieve current. Okay, and after so many experiments, they demonstrate that electric current were induced. Electric current were induced. ये इंड्यूस का मीनिंग क्या होता है? इंड्यूस मीन्स विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, we have to generate electric current. This means induce. Okay, the electric current were induced in a closed coil. मैं जो भी वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं वो जरूरी है. ओके, इलेक्ट्रिक करंट वर इंड्यूस इन अ क्लोज कॉइल. क्लोज कॉइल क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लोज कॉइल को मतलब एक ही चीज समझे, circular coil means closed coil. Closed coil means a coil which two end are connected to each other. Okay, means a square can also be a closed coil, a rectangular can also be a closed coil, a triangle also be a closed coil. Okay, this closed coil means all the ends are connected to each other. Okay, then let's start with a beginning. Okay, electric current were induced in a closed coil when it's subjected to change in magnetic field. Okay, ये change in magnetic field भी बहुत काम की चीज है. जब magnetic field change होगी closed coil के अंदर, तब उसके अंदर electric current induce होगा. And this phenomena is called EMI. ओके, मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर किया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी स्टूडेंट क्या जानते हैं? पता है, मूवमेंट मैग्नेट की. मुझे पता है आप लोग आगे भी ये चैप्टर पढ़ चुके हो. तो मैग्नेट की मूवमेंट हो कराने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है. तो याद रखिए, मूवमेंट कराना सिर्फ एक तरीका है. देयर इज ओनली वन टाइप दैट मूवमेंट कैन चेंज मैग्नेटिक फील्ड. देयर आर सो मेनी अदर्स टाइप विच वी हैव लर्न इन एक्सपेरिमेंट ऑफ Faraday's law. Okay, experiment of Faraday's. Okay, when Faraday, there is something funny. When Faraday state this statement publicly, some asked question that what is the benefit of this? What is the benefit of this? This is the beginning of this statement. Okay, what is the benefit of this? Then Faraday answered very funny that what is the benefit of born baby? Okay, and nowadays we saw that magnetic chip used in computer, mobiles, electronics, all the electronic speakers, lights,
So many things are run on electromagnetic induction. But at that point, this is the beginning of that. Okay, now our 6.2 topic is Faraday's experiment. But before we reach to 6.2, let's start first 6.3 मैग्नेटिक फ्लक्स, बिकॉज उसके ऊपर से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट को समझने में आसानी रहेगी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद 6.3 मैग्नेटिक फ्लक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, इट्स सिंबल इज phi b. इट्स some roads it's phi m. ओके, अगर यहाँ पे m लिखो तो भी चलेगा, मैग्नेट की वजह से यहाँ पे m भी लिखा जाता है. तो b इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल b आता है. जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में phi e लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल e आता है, उसी तरीके से. ओके, लेट्स स्टार्ट इट्स डेफिनेशन. लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन. द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing perpendicularly, this word is most important, perpendicularly through a surface gives magnetic flux. Okay, the number of magnetic field line means क्या कि कितने नंबर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ ना, कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स इसे मैग्नेटिक फोर्स लाइन भी कहते हैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है. क्यों? क्योंकि माइकल फैराडे ने खुद इसे फोर्स लाइन कहा हुआ है, पर आगे जाके इसको चेंज किया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर मींस दिस शेप. ओके, 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सरफेस को परपेंडिकुलरली पास करेगी उसी को कंसीडर किया जाएगा और उसका नंबर मैग्नेटिक फ्लक्स देगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ डिजाइन और ड्राइंग. ओके, लेट्स से I have this type of closed surface. Okay, in this surface I have draw magnetic field line. This one, 1, 2, 3, 4 at equal distance. Okay, this is B. Then what is the magnetic flux? How many lines pass through perpendicularly through it? 1 and 2. Then its flux must be a 2. Let's take lines density increase. What is the meaning of increasing density? अगर हम डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा. हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं. देखो, सेम टू सेम फिगर. ओके, सेम साइज की मैंने यहाँ पे एक और सरफेस ली हुई है. अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट सेम डिस्टेंस, ऑल हैव अ सेम डिस्टेंस. बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो यहाँ से ज्यादा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा? तो हमें तो क्या चेक करना है, perpendicularly how many number of lines passing through this surface? 1, 2, 3, 4 and 5. Then magnetic flux must be here 5. तो इन दो फिगर पे से हमें क्या डिराइव हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. हम यहाँ पे लिख के रखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स व्हाट? जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा. व्हाट इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द सरफेस? लेट्स ड्रॉ वन अनदर फिगर ओवर हियर. नहीं दिखाएगा, मैं ऊपर ड्रॉ करता हूं इधर. ओके, okay, I had a small space. Okay, big surface, and with this density I have draw a line. Okay, then if I increase the area of surface, then how many magnetic fields are there? 1, 2, 3,
4 and 5 means here also magnetic flux is 6, oh sorry 5, 1 2 3 4 5 means what? If I increase the area of the surface, then also magnetic flux get increased, then also it's a directly proportional to area of the surface. And if we combine both of them, then we know that magnetic flux is directly proportional to B into A. if प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ले तो फिर आंसर आ गया B into A. बट वी ऑल नो दैट द ओरिजिनल फॉर्मूला इज BA cos theta. Then what is this cos theta or what is this theta? Theta is angle between, ध्यान से सुनना, theta is angle between magnetic field and area vector. This is not only area, area vector और magnetic field के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा. देन वी हैव टू रोट एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा. तो ये हो गया हमारे एरिया वेक्टर 90 डिग्री के डायरेक्शन में. तो हम ये थीटा वाली ड्राइंग ड्रॉ करते हैं. इधर देखो, अगर मेरी सरफेस जैसे कि तैसे ही है और my area vector in this direction, this is my A. If my magnetic field will be in direction, then the angle between two is this theta. Then we have to take B cos theta and B sin theta. B cos theta are in this direction, B cos theta is in this direction, and B sin theta must be in this direction. From now, what we have to take, B sin theta or B cos theta? B cos theta, because we need B cos theta, not in this direction. ऐसे नहीं होता है कि B इधर cos theta चाहिए इसलिए ये cos theta लेने का. हमारा डेफिनेशन को चेक करो. डेफिनेशन में लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मस्ट बी पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर थ्रू इट. मींस कि B का जो परपेंडिकुलर लाइन है B cos theta है और ये तो सरफेस की डायरेक्शन में जाएगा. इस वजह से B cos theta लिया जाता है. तो इस वजह से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 5B इज इक्वल टू B cos theta into A. A तो A is a area vector. He is always perpendicular to the surface. Okay. Then B cos theta in this direction. Some teachers also and some students also tell that we can take A cos theta. We can take A cos theta means कि A का हम cos theta घटक ले सकते हैं, ए का हम cos theta यूनिट ले सकते हैं. पर ऐसा कभी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का ही परपेंडिकुलर घटक चाहिए और परपेंडिकुलर वैल्यू चाहिए. तो बी की परपेंडिकुलर वैल्यू लेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर में, तो ऑलवेज इट्स बी cos theta. लेट्स ड्रॉ अनदर फिगर. व्हाट इफ माय सरफेस is in this direction and my B is in this direction. B is horizontal but my surface in angular direction. Then my A will be in this direction. A is always perpendicular. A is what? Area vector. This is a vector quantity. आज कितने लोगों को तो पता चला होगा ना कि एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स नॉट अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. तो एरिया वेक्टर दिस डायरेक्शन में है, बी मेरा इस डायरेक्शन में है, तो इस दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया. तो अभी मुझे बी की डायरेक्शन में ए नहीं लेना है, मुझे बी को ए की डायरेक्शन में लेना है. क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू इट. तो मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर वैल्यू आएगा वही मेरे को फाइंड करना है. तो परपेंडिकुलर वैल्यू हो जाएगा बी cos theta. So we can tell that there is always B cos theta, not A cos theta. Okay. If the cos theta is there, then we can wrote in dot product B dot A. Okay. We can wrote it in this way. Flux V is equal to B dot A. Okay. डॉट प्रोडक्ट है तो इसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है. वेदर एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके. अभी हम और थोड़ी कंडीशन चेक करें. व्हाट इफ द सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल? दिस सरफेस आर सिमेट्रिकल सरफेस. व्हाट इफ द सरफेस इज नॉट सिमेट्रिकल और यूनिफॉर्म सरफेस?
then if the surface is be like this, then we have to take a small part of symmetrical surface with a perpendicular area vector dA. स्मॉल सरफेस है तो उसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर dA होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन, then it's B and it's theta. Then we have to find this. It's called d phi B is equal to B dot dA. ओके, ऐसा ही हम यहाँ पे और सरफेस लेंगे और ऐसी सारी सरफेसों का इंटीग्रेशन करके हमें टोटल फ्लक्स कितना पास थ्रू होगा वो मिल जाएगा. एंड इफ द सरफेस इज 3 डायमेंशनल एंड नॉट सिमेट्रिकल, जो तुम्हारी बुक्स में दी हुई है, तुम्हारी बुक्स में जो दी हुई है इससे भी अलग है. कैसा है? इस तरीके से ऐसे इस तरीके की सरफेस है. यहाँ पे 3D सरफेस इतना समझो कि ये भाग सर्कुलर है बाहर निकला हुआ, और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में आएगा. एरिया वेक्टर मस्ट बी इन अलग अलग डायरेक्शन perpendicular and they all are in different direction, and electric field also in different direction with different value. In this direction it's here, in this direction it's another value, it's this direction in another magnitude. Let's say here it's B1, here it's B2, B3, B4. मीन्स यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू है और एरिया वेक्टर भी डिफरेंट है. तो तब क्या होगा, अगर एरिया भी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है और मैग्नेटिक फील्ड भी अलग अलग है, देन वी हैव टू समेशन इट. इफ वी फाइंड आउट दिस फ्लक्स, दिस पॉइंट फ्लक्स, वी कैन रोट इट फ्लक्स phi B1 is equal to B1 into B1 dot dA1, then another B2 dot dA2 plus B3 dot dA3. तो यहां पे क्या होगा, समेशन होगा. यहां पे क्या हुआ था, इंटीग्रेशन हुआ था. इंटीग्रेशन कब करना है, जब B इक्वल है, हर जगह पे B यूनिफॉर्म है, ओनली surface is not symmetrical, then we have to do integration. If the surface is not symmetrical and the magnetic field also change in all direction, then we have to summation it. Okay, now we have totally derived the flux formula. Now let's take flux formula की यूनिट क्या होगी, उसका डायमेंशन क्या होगा, वो सब हम डिफाइन करते हैं. Okay, then our formula is I can erase this also. Okay, we had get formula of flux phi B is equal to B A cos theta. Okay, from this we can derive first units. Its units is a very complicated thing. Okay, the first unit is Weber. विलियम इंडियोस ऐसा कुछ नाम है, इंडियो वेबर ऐसा कोई साइंटिस्ट का नाम है, उसकी याद में यहाँ पे एक फ्लक्स का यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर दिया हुआ है. इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा. ओके, अनदर यूनिट इज बी का यूनिट होगा टेस्ला, एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, देन अनदर यूनिट इज टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर. और ये दोनों यूनिट्स एमकेएस के सिस्टम में, इफ वी हैव टू रिटर्न इट इन सीजीएस, then it's become Maxwell, its name is Maxwell, or it's Gauss into centimeter square, ये दो फॉर्मूला है, ये CGS में है. ओके, अब यहाँ पे कंपैरिजन देखें तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, बट 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल. 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, मतलब कि 1 वेबर एमकेएस का सीजीएस के 10⁸ मैक्सवेल जितना होगा. और ये कहां से आया, इसे डिराइव करना हो तो 10⁸ ही क्यों लिया, किसी को क्वेश्चन हो रहा है 10⁸ ही क्यों लिया, तो ये इस वजह से लिया. लेट्स कन्वर्ट इट इनटू एमकेएस. देन 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस. वी नो दैट 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस.
1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, जिसका स्क्वायर है। अब हम एरिया वैल्यू निकालेंगे तो 10⁻4 इंटू 10⁻4 10⁻8 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता चल गया होगा 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इज इक्वल 10⁻8 गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे फ्लक्स की 2 एमकेएस की फॉर्मूला है, 2 एमकेएस की यूनिट है और 2 सीजीएस के यूनिट बनते हैं। अभी हमको इसका डायमेंशन भी डिफाइन करना है। लेट्स यू कैन रोट इट ऑल, नोट डाउन करते जाना। ओके चलो, अभी हम इसका डायमेंशन निकाल रहे हैं। तो डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, उसे एमएलटी भी बोलते हैं। वो निकालने के लिए हमें बी ए कॉस या सबकी यूनिट चाहिए। बी की यूनिट हमें टेस्ला पता है, पर इन एमएलटी देयर इज नो यूनिट फॉर टेस्ला। सो बी का हमें कोई फॉर्मूला फाइंड करना होगा। बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे ये देंगे, क्यू वी क्रॉस बी, थर्ड चैप्टर। ओके, और क्यू बी साइन थीटा। फ्रॉम हियर वी कैन डिराइव बी इज इक्वल टू एफ अपन क्यू वी साइन थीटा। ओके, वी पुट दिस वैल्यू ओवर हियर। ओके, एफ अपन क्यू वी साइन थीटा ए कॉस थीटा। ओके, लेट्स पुट ऑल द यूनिट्स। एफ फोर्स है तो फोर्स की डायरेक्ट न्यूटन नहीं लिखना है, हमको एमएलटी बनानी है। तो एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा जाता है। इसके ऊपर से बनाते हैं एम इज इक्वल टू किलोग्राम मास, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डायरेक्ट नीचे लिख देता हूं। कुलम, अब कुलम को भी एमएलटी में अगर एम्पियर वाली एमएलटी बनानी है तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो उसके ऊपर से Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अगर Q की जगह I इंटू टी लिखेंगे तो I का होगा एम्पियर, टाइम का होगा सेकेंड, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा। ओके, मीटर मीटर कैंसल, और कुछ एक एक सेकेंड कैंसल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर से अगर हम फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन निकालेंगे तो इट्स m1 मीटर रेस टू -2 मीन्स L2, सेकेंड रेस टू 1 and 1 2, सेकेंड रेस टू टाइम रेस टू -2 एंड एम्पियर रेस टू -1। ओके, ये हो गया हमारा फ्लक्स का डायमेंशन। तो हमें फ्लक्स के अंदर ये सब बहुत ज्यादा याद नहीं रखने का, ये बहुत कम पूछा जाएगा। हमें याद रखनी है उसकी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्यों याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर से पता चलता है कि फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ऑन एरिया एंड द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम। इफ वी चेंज एनी ऑफ द थ्री और ऑल ऑफ थ्री, द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज। बस आपको ये याद रखना, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कैसे करंट इंड्यूस होगा वो हम देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स टेक द एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडेज। Okay, let's start Faraday's law. Faraday's experiment. Okay, the first experiment is 6.1. Okay, in that experiment, what's this figure? Okay, in that experiment, the coil C1 is connected. Okay, the coil C1 is connected with galvanometer, and the bar magnet is put near to the coil. Okay, what happened? बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल में से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी, और साउथ पोल में से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएगी। ओके, और हम फ्लक्स की फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपको पता है एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है किसी प्रिंसिपल को या फिर किसी फिनोमिना को ऑब्जर्व करने का, और उस ऑब्जर्वेशन में से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालने का। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मैं जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, उस एक्सपेरिमेंट में विच ऑफ दिस थ्री कैन चेंज, वेदर इट्स चेंज मैग्नेटिक फील्ड और एरिया और एंगल। ओके, तो हम फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट 6.1, ओके, the coil C1 connected to galvanometer and the bar magnet. Okay, if bar magnet को मैं पुश करूंगा कॉइल के टुवर्ड्स, कॉइल के तरफ अगर मैं बार मैग्नेट को पुश करूंगा तो करंट इंड्यूस होगा। इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, किसी भी एक तरफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। अगर सोचो हमने पुश किया कॉइल की तरफ तो गैल्वेनोमीटर ने इस तरफ डिफ्लेक्ट किया।
फिगर में इस तरफ दिखाया हुआ है। अगर चलो यहाँ फिर से शुरू करते, अगर गैल्वेनोमीटर को पुश किया तो सॉरी, अगर बार मैग्नेट को पुश किया तो गैल्वेनोमीटर दिस इन दिस डायरेक्शन इट्स डिफ्लेक्ट, एंड डिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, इट्स इंडिकेट दैट करंट फ्लोज इन इट। और अगर हम पुल करेंगे और ये डिफ्लेक्शन कहां तक रहेगा, द डिफ्लेक्शन रिमेन्स लास्ट as long as the bar magnet is in motion. If bar magnet comes in steady position, then there is zero. Deflection फिर से zero हो जाएगा. Okay. Now we pull it out, it's away. Then the the galvanometer deflection occurs in opposite direction. Opposite direction means what? The electric current which is induced is reversal position. Means पहले अगर ऐसे आ रहा था तो फिर अब ऐसे आ रहा है. ओके, वी चेक टू कंडीशन. व्हाट इफ वी चेंज द पोल ऑफ बार मैग्नेट. अब अगर हम साउथ पोल लेंगे तो साउथ पोल से जो नॉर्थ पोल से हो रहा था ना, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा इन सिमिलर कंडीशन. ओके, देन हमने 4 कंडीशन चेक की. नॉर्थ पोल की दो कंडीशन, पुश एंड पुल. साउथ पोल की 2 कंडीशन, पुश एंड पुल. देन 5th कंडीशन वी चेक what if we firstly move the bar magnet to coil. अगर हम कॉइल के नजदीक बार मैग्नेट को वेरी फास्टली मूव करेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. ये क्या दिखाता है? इट्स इंडिकेट दैट इफ वी मूव बार मैग्नेट वेरी फास्टली देन द इंड्यूस्ड करंट इंक्रीजेस. ओके, और 6th कंडीशन क्या चेक करनी है? 6th कंडीशन के अंदर बार मैग्नेट को स्टेडी रखो और कॉइल को टू एंड फ्रो मूवमेंट करवाओ. ओके, तो सेम थिंग्स अगर, देन यू हैव टू चेक इट आउट. मैंने क्या कहा था, आपको क्या चेक करना है? इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी चीज चेंज हो रही थी? तो हम सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी. क्यों? क्योंकि कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो पास हो रही थी वो उसकी डेंसिटी या तो बढ़ रही थी या तो कम हो रही थी. मतलब कि अभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज. ओके, एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज देन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज. ओके, ये मैं अभी से इसलिए ऑब्जर्व करवा रहा हूं क्योंकि फैराडेज के जब हम लॉ पढ़ेंगे तब सारी बातें मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर से आने वाली है. ओके, नाउ इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ओके, वी अंडरस्टैंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. Sixth condition, first condition, north pole को to and fro, first and second. Okay, third and fourth, south pole को to and fro. Okay, 5th condition, fastly, rapidly to and fro, and 6th condition, बार मैग्नेट को स्टेडी करो और कॉइल को टू एंड फ्रो करवाओ. ओके, तो इन सारी कंडीशन में हमने क्या देखा? किसी ना किसी की मूवमेंट हो रही है. ओके, तो फैराडे ने इस मोमेंट के ऊपर से, इस मोशन के ऊपर से एक स्टेटमेंट दिया. उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इट इज द रिलेटिव मोशन. दिस इज द मोस्ट आईएमपी वर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट. इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंडक्टिंग कॉइल. इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंडक्टिंग कॉइल. आपका पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, अटेंशन यहाँ पे नहीं है. अगर आप सुन रहे हो फिर भी कोई फायदा नहीं है. ओके, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कंडक्टिंग कॉइल that is responsible for induce or for induction of electric current in a coil. ओके, तो क्या होता है? किसी भी दो मैग्नेट और कॉइल के बीच की रिलेटिव मोशन की वजह से कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है. ओके, ये फिनोमिना आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट में ये फिनोमिना हुआ है, दूसरे में भी यही होगा, तीसरे में रिलेटिव मोशन ही कैंसिल हो जाएगा. ओके, तो हमें ये एक्सपेरिमेंट पता चली. सॉरी. ओके, देन रिलेटिव मोशन. इफ आई टेल यू दैट द कॉइल मूव इन दिस डायरेक्शन विथ 3 मीटर पर सेकेंड and magnetic bar also move in this direction with 3 meter per second, then is there a relative motion between there? No, then the relative motion is zero, and the relative motion is zero, there is nothing to induce current. Okay, तो अगर दोनों के रिलेटिव मोशन एक जैसे है और दोनों मोशन में इन सेम डायरेक्शन विथ द सेम स्पीड,
तब भी इन दोनों के बीच की रिलेटिव मोशन जीरो होगी। अगर रिलेटिव मोशन जीरो हो गई तो कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस नहीं होगा। और देखो ना, यहाँ पे बार है, यहाँ पे कॉइल है, एक जैसे मूव कर रहा है, तो अंदर से पासिंग होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की कंटेनमेंट एक जैसी ही रहेगी हमेशा के लिए। ओके, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट नहीं इंड्यूस होगा। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, सिर्फ मोशन होने से कुछ नहीं चलेगा। इन दोनों के पास मोशन है पर रिलेटिव मोशन इन दोनों का जीरो है। व्हाट इफ the coil is moved towards this direction with 3 meter per second? Whether the relative motion is get zero? No, then the relative motion is 3 plus 3, 6 meter per second. You all learn this in mechanics 11th. Okay, 6 meter per second. Then current induce होगा, बहुत rapidly होगा क्योंकि एक दूसरे की opposite direction में आ रहे हैं. Okay, it's for general knowledge. Let's start the second experiment. 6.2. Okay, 6.2. In the second experiment, we replace, watch it figure, we replace bar magnet with another coil C2 which connected with battery. Okay, battery has a steady flow. Okay, if battery has a steady flow, then magnetic field induced in C2 or magnetic field produced in C2 is steady. Then what we have to done? मोमेंट सेम। अगर हम C2 कॉइल को टू एंड फ्रो करवाएंगे तो C1 कॉइल में करंट इंड्यूस होगा रिलेटिव मोशन की वजह से। अगर हम C2 कॉइल को स्टेडी रखेंगे और C1 कॉइल को टू एंड फ्रो करवाएंगे तब भी रिलेटिव मोशन की वजह से करंट इंड्यूस होगा। अगर दोनों को मूवमेंट करवाएंगे तब भी रिलेटिव मोशन की वजह से करंट इंड्यूस होगा। अगर एक कॉइल को रैपिडली दूसरे की तरफ मूवमेंट करवाएंगे तब ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा तो इसमें भी क्या चेंज हो रहा है? व्हाट इज चेंजिंग इन दिस? इन दिस आल्सो मैग्नेटिक फील्ड चेंज। ओके, दूसरी कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रही है। तो अगर दूसरी कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव मोशन की वजह से चेंज हो रही है तो दूसरे के अंदर भी यही फिनोमिना काम करेगा। रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग और इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल। ओके, तो ये फिनोमिना आपको याद नोट डाउन कर लेना है। ओके, चलो let's watch experiment 3 6.3. Okay, in 6.3 experiment there is absolutely not require any relative motion. Okay, what we have to done, we put coil with tapping key. What we have to done, if we tap this key, then immediately small amount of deflection occur in galvanometer and then become zero. अगर हम क्या करेंगे, अगर हम टैपिंग की के को टैप करेंगे तो थोड़ी देर के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, थोड़ी देर के लिए, बाद में वो जीरो हो जाएगा। ओके, अगर हम इसे टैप करके ही रखेंगे देन डिफ्लेक्शन जीरो का जीरो रहेगा। when we release it then also it's deflect in another direction for small moment and become zero. तो इसमें क्या हुआ, जब हम की टैप कर रहे हैं तब अंदर से करंट फ्लो होना चालू हो रहा है। अभी करंट का फ्लोइंग स्टार्टिंग हो रहा है तो करंट इंक्रीज हो रहा है कॉइल में। अगर करंट रीच टू देयर स्टेडी पोजीशन तब तक के लिए अंदर करंट चेंज हो रहा है, तो तब तक के लिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड तब तक के लिए चेंज होगा तो उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन आएगा, फिर वो जीरो हो जाएगा। जैसे ही हम इसे रिलीज कर देंगे करंट गेट रिड्यूसेस इन कॉइल, सो द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो गेट रिड्यूसेस इन कॉइल। अगर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है तब भी थोड़ी देर के लिए डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो करंट इंड्यूस होता है। ओके, हमने ये 3 एक्सपेरिमेंट देखे। इन तीनों में से एक भी एक्सपेरिमेंट में एरिया या फिर एंगल चेंज नहीं हुआ, पर हम फैराडेज के लॉ के अंदर इन दो चीजों की भी बात करेंगे। ओके, तो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, सो आई वांट टू टेक अ फैराडेज लॉ विद कंटिन्यूस, बट I will do in second lecture, okay, और नेक्स्ट लेक्चर। अभी जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम फैराडेज लॉ पढ़ेंगे, फैराडेज के फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉस पढ़ेंगे
उनकी सारे एग्जांपल्स, फिर लेंस भी सेकंड लेक्चर में ही पढ़ लेंगे, उसके सारे एग्जांपल भी हो जाएंगे। अभी नहीं लेने का रीजन ये है कि दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, सो यू कैन, आई एंड यू आर बिकम कंफर्टेबल विथ each other. Okay, that's why I don't take so many topics in a first video. Okay, then I hope you enjoyed this video and please notes करिएगा सारी चीजों को। एंड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं मेरे कांटेक्ट की डिटेल दे दूंगा, वहां पे पूछ सकते हो, या फिर हमारे ग्रुप के अंदर आप कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, और क्वेरी होनी ही चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आपने पूरी ध्यान से नहीं पढ़ा अभी तक। ओके, ओके देन बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।